Hello students, today we are going to learn chapter 9 methods of separation in everyday life, which deals with various separation techniques that we use in our daily lives. तो ये जो चैप्टर है ना वो एक एक्साइटिंग जर्नी को कैप्चर कर रहा है. मली एंड वली, दे आर बोथ सिस्टर्स, उनके एक्साइटिंग जर्नी को कैप्चर कर रहा है थ्रू आउट इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विजिट देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और वहाँ पे जाके उन्होंने, विलेज था वो, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे जाके उन्होंने ये सीन देखा कि जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ हाथों से चुन रहे थे, कुछ हाथों से निकाल रहे थे. क्या निकाल रहे थे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, राइट. यहाँ पे कुछ स्टोन्स निकाल रहे थे. तो ग्रेन्स में से स्टोन्स निकाल रहे थे. मशीन का यूज कर रहे थे? No, they were using only hands. So this is the first separation technique that we are going to learn today. This is called hand picking technique, and the definition of course is very easy. जिससे separation जो है हाथ से हो, उस टेक्निक को बोलते हैं hand picking technique. So let us annotate the method of picking by hand from mixture. The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small stones or husk from wheat or rice, is called hand picking. So hand picking is a method wherein hand is used. Now this method is based on three criteria. First of all, the size of the substance to be separated, the color, and also the shape of the substance to be separated. Now the stone that we are talking about ना, उसका तो साइज, कलर, शेप सब डिफरेंट है फ्रॉम राइस ग्रेन और व्हीट ग्रेन. तो उसको सेपरेट करना बहुत इजी है. लेकिन क्या ये हैंड पिकिंग टेक्निक बड़े क्वांटिटी की चीज़ें, जैसे अगर बहुत सारा स्टोन मिक्स्ड है विद राइस ग्रेन्स, इज इट possible with hand picking? It might be possible, but it will take a lot of time and a lot of effort. So we are going to learn in fact some of the separation techniques which are easier. Now the sisters move on and they see these two ladies over here. I hope it is visible. These two ladies over here, what are they doing? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग लिटरली बीट कर रहे हैं wheat stalks को, right? The wheat stalks that they harvested, what they are doing with them? They are thrashing them on a flat surface. And why they are doing it? They are doing it to separate the wheat grains from the stalk. So by doing it, you are separating the grains. That is what we want. We don't want the stalk, right? So that is an useless part. We do not want the stalk. We just want the grain. So this method is called threshing. चैप्टर 3 समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि निमोनिक डिवाइस है thrashing. Thrashing मतलब beating. तो उससे याद रखना है threshing. Threshing is also literally beating, right? So they are beating the stalks to separate the grains. And this process of separating grains from the stalks is known as what? Is known as threshing. Very correct. Now we move on to the नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक. अच्छा आप ये बताइए, व्हीट ग्रेन्स तो सेपरेट हो गए, लेकिन हमें व्हीट ग्रेन्स ही सिर्फ मिला क्या? नहीं, हमें उसके साथ हस्क भी मिला. नाउ हाउ टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द व्हीट ग्रेन? नाउ देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ओवर हियर, वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट. यहाँ पे देखिए पर्पल बॉक्स में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस is mixed with chana dal. Puffed rice मतलब मुरमुरा, that is mixed with chana dal. Now how can you separate the mixtures? So can you use hand picking technique? Of course you can use, but that will take a lot of time and effort. What other method can you use? देखिए मुरमुरा या पफ्ड राइस जो होता है वो हल्का होता है, लाइटर होता है than chana dal, right? So can we use this property of murmura to separate it? Yes, we can. We can just blow air over it.
ब्लो एयर ओवर द मिक्सचर, मिक्सचर को प्लेट पे रखा है, ब्लो एयर ओवर इट, या हेयर ड्रायर चला दिया ऊपर से, तो मुरमुरा सब उड़ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या रहेगा, चना दाल। अब ऐसा ही टेक्निक हम विंटर में काफ़ी यूज़ करते हैं, जब पीनट्स खाते हैं ना, हम पीनट्स का छिलका जनरली हम अवॉइड करते हैं, डाइजेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो पीनट्स को हम क्या करते हैं, अपने पाम में रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, और फिर उसको रब करते हैं, और रब करने के बाद एक फूंक मार देते हैं। और जैसे हमने फूंक मारी, क्या होगा, वो जो पीनट के जो आउटर कवरिंग्स है ना, वो जो पील्स हैं वो निकल जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। अब ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए, इसके थ्रू क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि अब व्हीट ग्रेन्स और व्हीट ग्रेन्स पे जो हस्क हैं उनको हम कैसे रिमूव करें? बिल्कुल, वी विल यूज द पावर ऑफ एयर। तो व्हाट फार्मर डज इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक टेक्निक, उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में यहाँ पे देखिए, ये फार्मर जो है आपको दिख रहा है, फार्मर इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल। तो वो क्या है, वो एक रेस्ड सरफेस पे खड़ा है ना, हाइट है ना, यहाँ से ग्राउंड से ऊपर है, सो वो एक रेस सरफेस पे खड़ा है, राइट। तो वो रेस सरफेस पे खड़ा होके क्या कर रहा है, उसने वो व्हीट ग्रेन्स लिए जो उसने थ्रेशिंग के बाद ऑब्टेन किया, उसने वो लिए, उसने बैम्बू ट्रे पे रखे, ये रहा आपका बैम्बू ट्रे। और फिर उसने क्या किया, बैम्बू ट्रे को जोर जोर से हिलाया इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो यहाँ पे जो है विंड की डायरेक्शन है, यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो डायरेक्शन ऑफ द विंड में ही उसने बैम्बू ट्रे को जोर जोर से हिलाया। तो बैम्बू ट्रे में क्या था, व्हीट ग्रेन प्लस हस्क, राइट। अब क्या होगा, बाय ब्लोइंग एयर द हस्क दे blow out. Why? Because husks are lighter than the wheat grains, right? Husks are lighter than the wheat grains. So what happens over here is they fall to a greater distance from where the farmer is standing. While the grains being heavier, they will fall at a smaller distance and they can be easily, just easily they can be collected, right? So this method wherein we use the wind for separation is called winnowing. W for wind, W for winnowing. Let us go to the definition. The method of separating heavier and lighter component of mixture by wind or blowing air is called winnowing. Now we go on to the next separation technique. तो मल्ली और वली अब कहाँ गए, मल्ली और वली अब गए भाई अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में उनकी जो मामी है, उन्होंने बोला रुको मैं आटा गूंद देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, उससे पहले मुझे आटा को छलनी में छानना है। मतलब क्या करना है, सीव यूज़ करना है। आपने अपनी मम्मी को, पापा को कभी भी सीव यूज़ करते हुए देखा है? चाय कैसे छानते हैं, या आटा, मैदा, उसको अगर आपको फाइन पार्टिकल्स चाहिए तो आप सीव का यूज़ करते हैं, राइट। तो सीव का बेसिक फंडा क्या है, सीव में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। सो हियर यू सी देयर इज द सीव दैट इज बीइंग यूज्ड, या दिस इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे सीव में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, और छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू फाइनर पार्टिकल्स कैन गेट इन, बट नॉट द पार्टिकल्स विच आर बिगर इन साइज देन द साइज ऑफ द पोर्स। आई होप यू डू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास है, यहाँ पे एक बैंगल है, राइट। सो यू इमेजिन दिस बैंगल एज वन टाइप ऑफ अ होल ऑफ सीव, राइट। तो इसमें से अगर मैं ये मार्बल जो है, अगर मैं इसको घुसाऊं अंदर, तो ये डल जाएगा आराम से, यहाँ पे आ जाएगा मेरे इस हाथ में। लेकिन अगर मैं इस बैंगल के इस पोर साइज से बड़ा कुछ पार्टिकल लेती हूँ, जैसे कि ये, तो ये अटकेगा ना, ये तो नहीं जा पाएगा ना थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर। So you can understand the size of the pore is what determines what goes through and what remains there.
राइट। तो इसी को यूज करते हुए हम सीविंग टेक्निक यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिस ऑफ सेपरेशन इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। और विनोइंग में क्या था, विनोइंग में चलते हैं, देखिए विनोइंग में क्या था, विनोइंग में सेपरेशन का बेसिस था क्या, हेवीनेस और लाइटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, राइट। तो उसी के बेसिस पे सेपरेशन हो रही है। और यहाँ पे सीविंग में सेपरेशन किस बेसिस पे हो रही है, सीविंग में सेपरेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो see, carefully observe a sieve. Are all the holes of the sieve the same size? Will sieving work if the holes of the sieves are larger than the substances? देखिए ये पूरा का पूरा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीव का साइज, अगर फाइन सीव है, अगर होल्स पोर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो हमें और फाइनर पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, टू गेट फाइनर पार्टिकल्स वी नीड टू यूज sieve. In those cases we need to use sieve, right? Now we go on to the next separation technique. तो मल्ली एंड वली अहमदाबाद में है, अहमदाबाद की बात चलती है, गुजरात की बात चलती है, तो महात्मा गांधी की बात भी होती है, राइट। तो दांडी मार्च के बारे में पूछा, फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि वेयर इज नमक और द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, नमक या ये कॉमन सॉल्ट है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो आंसर क्या आया, फ्रॉम द सी वाटर, राइट। तो ये सी वाटर में कैसे हम सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इज देयर अ सक्शन टेक्निक, नहीं। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सॉल्ट पिट, सॉल्ट पिट, पिट का मतलब पता है ना, गड्ढा। तो सॉल्ट पिट बनाया जाता है सी बीच के पास, तो सी बीच में सॉल्ट पिट बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सॉल्ट पिट्स है ना, उसमें सी वाटर इकट्ठा करते हैं। अब आपने एक टर्म पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर में, विच इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? Exactly. Evaporation is water converting into water vapor. तो ये जो सी वाटर है इसको रखा जाता है for a few days to be evaporated by the sun's heat. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है evaporation, right? तो पानी जो है evaporate हो रहा है, तो अब बचेगा क्या, पानी में salt dissolved है, बचेगा क्या, of course बचेगा salt. And this is the way salt is separated from seawater. So let us read. To obtain salt, the seawater is kept in shallow pits and exposed to sunlight in air. And in a few days, what will happen? The water will convert into water vapor by the process of evaporation. And then what happens? The salt only remains in the pit. So now we come on to two activities. We are taking a bowl and in that bowl we are dissolving salt in water. Okay. तो हमने एक सॉल्ट वाटर सोल्यूशन बना लिया। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और अ स्पून वी विल जस्ट मेक क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स ऑन अ डार्क शीट ऑफ पेपर। सी यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हुए हैं। अब कुछ देर उसको रख देंगे, फिर क्या होगा, फिर evaporation will again come into play. Now what will happen? Now you will get these white patches. So what are these white patches? क्या होता है, evaporation से water vapor बन गया, आपके पास था salt solution, अभी बचा क्या, अभी बचा salt, white salt, right? तो अभी जो ये पैटर्न बना ये बेसिकली सॉल्ट की वजह से बना। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 9.3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है और फिर बर्नर को चलाया है, फिर ट्राइपॉड स्टैंड पे वायर गॉज रखा है, फिर चाइना डिश लिया है। चाइना डिश में सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व किया गया है पानी में और बर्नर को चलाया गया है। Now what is happening? Heat is being supplied to the china dish and the heat is then transferred to the water. Now the water is converting itself into water vapor, right? Through the process of evaporation. अब आपको मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, लास्ट में आपको सॉल्ट मिलेगा, right? This is also a technique of separating salt from water. Now my question is, my dear students, how will you separate
water and salt and get those back from a salt solution. I hope the question is clear. You have salt solution, salt को पानी में डिसॉल्व किया. अब आपका काम है सॉल्ट को भी अलग करना है, पानी को भी मुझे चाहिए. पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए. तो क्या करेंगे? देखिए, आपने एक और टर्म पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में. क्या टर्म पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है कंडेंसेशन, राइट? तो इस कंडेंसेशन के थ्रू हम करेंगे ये सेपरेशन. इसमें क्या करना है ना, इसमें आप एक केटल में आप ले लीजिए सॉल्ट सोल्यूशन और उसको आप बर्नर पे चला दीजिए, और बर्नर पे चलाने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. और ये जो स्टीम निकल रही है ना यहाँ से, ये जो केटल से जो स्टीम निकल रही है, इसके साइड में हमने पकड़ लिया एक लिड. तो अब क्या हो रहा है? द वाटर वेपर्स आर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द लिड एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? The water vapor is converting into liquid droplets through the process of condensation. और उन liquid droplets को हम एक जार में obviously कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे salt बना केटल में, और यहाँ पे जार में क्या कलेक्टेड हुआ? कलेक्टेड हुआ वाटर. ये जो दो प्रोसेस है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो इन दोनों प्रोसेस को यूज करते हुए हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन salt as well as water. I hope it is clear to you. हम बाकी की सेपरेशन टेक्निक्स जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So any doubt, any query, do comment or contact me at datta.anveshabiotech@gmail.com. Happy learning students. Bye bye.